your screen is not visible. Mama. If my screen is not visible to you, It is visible, sir. It's visible, sir. you can hear. It's Shantanu? visible. Yes, sir. Shantanu? Yes, sir. Yeah, next time if anybody speaks, you just take him away from the meeting. Okay? Okay, sir. Yeah. अगली बार से अगर कोई बोलेगा तो उसको आप मीटिंग से बाहर कर देना. Is it good? हमको ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ना? तो आप लोग डेकोरम को मेंटेन रखो, ऐसा मत करो, ठीक है? अगर आपको मैं नहीं दिखाई दे रहा हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है, जस्ट लिसन टू दैट वॉइस, डोंट वरी. आपकी स्क्रीन पे बहुत कुछ आ रहा है, आप उसको देखो और केवल मेरा चेहरा देखोगे और जो स्क्रीन पे आ रहा है वो मिस हो जाएगा तो बहुत सारी चीजें आप नहीं समझ पाओगे. दिस इज द फर्स्ट डे टुडे. ओके, वी हैव अ लॉन्ग जर्नी. So don't say yes, don't say no, don't say sir ये नहीं हो रहा, sir वो नहीं हो रहा. Host is there, that is why we have a co-host. Shantanu sir will take care of it. If my voice is not coming, Shantanu sir will let me know. वो मुझे बता देंगे. Okay? जब भी हम लोग कुछ करेंगे मैं आपको बोलूंगा. अभी बहुत कुछ करेंगे. Don't worry, have patience. चलो, good. So now the question was, what is this 21-day challenge, power challenge is all about? This was the question. And look at the face of this boy. ऐसे ही आप लोगों ने भी अपना चेहरा बनाया होगा. क्या है ये challenge आप? Okay, so now you are getting answers. अच्छा, now tell me this word 21-day power challenge. If we break this word into 3 components, okay, so we get 21 days, we get power, and we get challenge. जिन बच्चों को इंग्लिश समझ में नहीं आएगा उनको बता दूं, अगर इस वर्ड को हम ब्रेक करेंगे तो हमें 3 वर्ड मिलते हैं. एक मिलता है 21 दिन, एक मिलता है पावर जिसको हम बोलते हैं ताकत, और एक मिलता है चैलेंज जिसको हम बोलते हैं ऑब्स्टिकल, जिसको हम बोलते हैं हमारे गोल्स, ओके, लक्ष्य. तो जब हम इस वर्ड को तोड़ते हैं तो हमें 3 डिफरेंट वर्ड्स मिलते हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट देम फर्स्ट. First word is called 21 days. Now question comes, why 21 days? Why not just for 1 day or 2 days or 1 week or 2 weeks? Why 21 days? Can anyone answer that? He will or she will raise hand. Only raise your hand, don't unmute yourself. Just raise your hand. Can you tell me why 21 days? Sir, someone has written bad thing in chat. Can you raise hand and give me the answer? Is there anybody who will raise hand? Shantanu, can you see if somebody is raising Sir, hand? can I give the answer? I said raise hand rather than asking question. Please raise hand. Yes, sir. Sir, he is writing very, very bad in chats. Better see, you will get to meet such people who will try to distract you. Okay. Listen Yes, to me, sir. everyone. Listen to me. Why are you getting worried? Ignore that chat. There will be people who will just do that nonsense. Okay. But you are not there for this particular thing. You are here for something to gain. So just avoid that. If somebody is writing something, you are not the one who needs to go there and check who is doing this or who is doing that. We have co-host, he will handle everything. So don't worry if somebody is writing something or some mischievous thing or some bad things or good things. We are not doing some chatting here. Okay, so avoid going there. Ignore that chat box option. Let him do it. He's wasting his time and everyone's time. Do you want to waste your own time? You don't want to. Okay, so ignore him or her, whosoever he is or she is. Okay, the question is, why 21 days? Just raise your hand, don't speak. Host will let you know. There is an option called raising hand. आपकी स्क्रीन पे एक ऑप्शन आता है raise hand. कोई बता सकता है why 21 days? Anyone?
स्टॉप चैटिंग. मैंने आपको ग्रुप में भी लिखा था डूज एंड डोंट्स. डोंट डू चैटिंग एंड ऑल. So don't do chat box. Okay? If you know something, just raise your hand. चलो, कौन कर रहा है raise? समृद्धि गुप्ता. Yes. 21 days में हमारी हैबिट बनती है. 21 days में हमारी हैबिट बढ़ती है. वेरी गुड. अपार्ट फ्रॉम दैट और किसने रेज हैंड किया था? दिव्या हैंड गुप्ता. रेज किया था. यस दिव्या. Sir, if we practice anything for 21 days, a habit is formed of that particular practice. ओके गुड. उसके अलावा लविष्का, आर्यन, प्रशांत. वन बाय वन शांति. लविष्का. Yes, sir. Sir, in 21 days, we can break a habit and we can form a habit, and in 90 days, we can make it our lifestyle, make it a part of our lifestyle. Very good. Nice. Good answer. Okay. Who is next? आर्यन. आर्यन कुमार. Yes, sir. Yes, sir. Sir, if you follow a habit for 21 days repeatedly, sir, our mind adopt that habit, and we are likely to this, and our brain sharpens, and we are able to follow that habit for our life. Good. Next. रितिशा बंसल. रितिशा बंसल. Habit come in 21 days. Good. Okay. Are we done? Yes. Okay. Great. All answers are nice. If you want to make a habit, we need 21 days or we need regular practice. You can give this answer. Sir, me. सर मैंने जवाब ही नहीं. अच्छा दो जवाब दो चलो. Waiting for your answer. Sir, we can make habit in 21 days. Okay. Sir, Thank you. may I tell? Please tell. I Sir, told you the to do that. 21-day trial is based on the age-old belief that it takes 21 days to fully form a new habit. According to research, it takes 21 days to fully form a new habit, as 21 days is the time required for new neural pathways to be fully formed in your brain. Okay. I got Excuse me, sir. I got it. Yes. Okay, I got it. Sir, Yeah. the same answer is given in Google. Who is this? Who is telling this? The answer is in Google. Tanisha. Tanisha, please don't do that. Don't do that. You're not here for that kind of stuff, okay? If anybody is searching or doing something, he or she is taking action. It hardly matters if he's getting it from Google or anywhere. Google is there to help us. And he is smart one who is going to Google. So don't worry about it. सारा information हमको कहाँ से मिलेगा? ऐसे तो मिलेगा ना? So don't do that, okay? Good. So all answers are nice. सबने अच्छे आंसर दिए. सबने बताया कि अगर हम किसी भी एक्टिविटी को 21 डेज तक करते हैं तो एक आदत बनती है और उस आदत से हमारी लाइफस्टाइल बनता है. Very good. So let's move ahead. Can you see something on your screen right now? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. No, sir. All can see. You all can. Don't tell me yes or no. Yes, sir. Music instrument. Yes, sir. Yes, sir. Music. Yes, sir. We see some musical instrument. Okay, so these Musical musical instrument. instruments which are there, people are playing with. You can't see their faces, okay? But you can see their hands, movement of their hands. For example, एक पियानो जो बजा रहा है आप उनको उसकी फिंगर देख रहे हो, और जो तबला बजा रहा है उनकी भी आप फिंगर देख रहे हो, जो सितार बजा रहे हैं उनकी भी आप फिंगर देख रहे हो, और जो फ्लूट बजा रहे हैं उनकी भी आप फिंगर देख रहे हो. तो क्या हो रहा है यहाँ पे? कितना फ्लॉलेस तरीके से वो उस इंस्ट्रूमेंट को बजा रहे हैं. आई मीन अगर आपको मैं अभी कोई इंस्ट्रूमेंट दूं, फॉर एग्जांपल एक इंस्ट्रूमेंट मैंने अभी पकड़ा हुआ है मेरे हाथ में, अगर आपको दिखाया ये इंस्ट्रूमेंट अगर मैं आपको दूं और बोलूं कि आपको ये इंस्ट्रूमेंट बजाना है, तो आप कैसे बजा पाओगे? आप पहली बार में तो नहीं बजा पाओगे, आपको बहुत डिफिकल्टी होगी. और फिर आप कोशिश करोगे, ट्राई करोगे,
धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, मे बी आप कुछ ट्यूशंस लोगे, यूट्यूब पे जाओगे, वहां से सीखोगे, फाइनली यू विल बी एबल टू प्ले इट. ओके, एंड नॉट ओनली दैट, अगर आपको बहुत अच्छे से परफेक्ट होना है तो आपको बहुत सालों की मेहनत लगेगी, और फिर आप बहुत आसानी से बजा लोगे. जो लोग कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं उन बच्चों में, वो रिलेट कर सकते हैं कि जब वो पहली बार कीबोर्ड पर उन्होंने ऐसे हाथ रखा था तो उनको पता नहीं था कौन सी की से क्या बजेगा, कौन सी मेजर की है, कौन सी माइनर कीज हैं, कौन सा शार्प नोट है, कौन सा फ्लैट नोट है. ठीक है, लेकिन जब वो बजाना सीख जाते हैं तो उनकी फिंगर्स अपने आप चलने लग जाती हैं. वो आंख बंद करके भी गाना बजा सकते हैं, वो आंख बंद करके भी तबला बजा सकते हैं, वो आंख बंद करके भी फ्लूट बजा सकते हैं, एनी इंस्ट्रूमेंट. ओके, सो दैट मीन्स एक इंस्ट्रूमेंट को जब हम इस तरीके से बजाते हैं, उसे बजाने के लिए हमने कितने सालों की प्रैक्टिस करी है, कितने सालों से हम उस प्रैक्टिस से गुजर रहे हैं, और फाइनली हम उसको अपनी मसल मेमोरी के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं. हमारे हाथ की मसल मेमोरी है और हमारी मसल्स को पता है कि कैसे कीज प्ले करनी है. ओके, सो दैट मीन्स repetitive action, okay, are forming our habit. So why 21 days? 21 days का क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि इन 21 डेज में हम अपने थॉट्स के बेसिस पे कुछ एक्शंस करेंगे, रिपीटेटिव एक्शंस करेंगे. एवरी डे हम उन एक्शंस को रिपीट करेंगे, एवरी डे हम कुछ नया सीखेंगे. ओके, और उसको रिपीट करेंगे सुबह और शाम, सुबह और शाम, ताकि 21 दिन के बाद वो एक्टिविटीज, वो एक्शन, वो हैबिट हमारी पर्सनालिटी में दिखने लगे, हमारा कैरेक्टर फॉर्म हो. सो अभी आपकी स्क्रीन में देखते हैं जैसे वो लेटा हुआ है और फिर वो उठने की कोशिश करता है, फिर वो थोड़ा उठता है, फिर वो चलता है, फिर वो दौड़ने लगता है. लेकिन वो जब सोया था उसके तुरंत बाद नहीं दौड़ने लगा, उसे एक टाइम लगा, उसको समय लगा ये समझने में कि उसे दौड़ना है. दौड़ने से पहले उसे खड़ा होना है, खड़े होने से पहले उसको स्ट्रेंथ डेवलप करनी है, तब वो दौड़ सकता है. तो ये इस लेवल को पाने के लिए कि मैं लेटा हूं और मैं दौड़ने लगा, मैंने प्रैक्टिस किया, बहुत प्रैक्टिस किया, और फाइनली मैं दौड़ने लगा. अब ये नहीं है कि मेरी बात सुन के आप दरवाजा खोलो और दौड़ जाओ बाहर, ये हम नहीं कह रहे हैं. मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जिस एक्टिविटी को करते हैं, जो हैबिट आपके अंदर है, जो कुछ आपको लगता है कि उसे आपको चेंज करना है, वो आप इन 21 डेज में चेंज कर सकते हो अगर आप चाहो तो. ओके, नाउ लेट अंडरस्टैंड दिस. स्वामी विवेकानंद, वी ऑल नो स्वामी विवेकानंद. ओके, स्वामी विवेकानंद ने कहा, character is repeated habits and repeated habits alone can reform character. इसको थोड़ा सा आसान भाषा में समझिए. हम जो कुछ हैं, हमारी पर्सनालिटी जैसी भी है, ये उन कलेक्टिव थॉट्स और हैबिट्स का ही परिणाम. हम जो करते रहे हैं, हम जो सोचते रहे हैं, एक्शंस. Shantanu, can you just keep your eyes or ear? हो गया. So यहाँ पे स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि कैरेक्टर इज रिपीटेड हैबिट. जो हम लगातार जो क्रियाएं करते हैं, जो एक्शन करते हैं एवरी डे, वो हमारा कैरेक्टर उससे फॉर्म होता है. हम कैसे इंसान हैं वो हमारे काम से पता चलता है, हमारे एक्शन से पता चलता है. हम क्या सोचते हैं, हम सोचने के बाद कैसे एक्शन लेते हैं, एक्शन लेने के बाद उन एक्शन को कैसे रिपीट करते हैं अपने जीवन में, और फाइनली हमारा एक कैरेक्टर, एक पर्सनालिटी डेवलप होता है. और उसके आधार पे कोई कहता है कि अरे ये तो बहुत हंसमुख किस्म का इंसान, अरे ये तो बहुत रोता है, अरे ये तो बहुत शरारती है, हर बार अनम्यूट कर देता है, हर बार अनम्यूट करके बीच में डिस्टर्ब कर देता है ना. तो हम ये जानते हैं कि कैरेक्टर को फॉर्म करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हैबिट. तो 21 days will help us to develop certain habits, good habits. 21 days will help us to reform the existing habits, habits which we don't want in our life. 21 days will motivate us
to remove those bad habits from our life. Okay, that is the reason 21 days. We'll keep repeating things. And finally, after 21 days, we will reach out to that goal which we had identified. अभी मैं आपको बताऊंगा कि goal कैसे identify करते हैं. Now, the second one was power. तो पहला हमने देखा 21 days. Second one was power. Okay. तो power का क्या मतलब है? किस power की बात हो रही है? ये जो बाहर खंबे से जो पाइप तार आ रहा है, ये वो पावर है, या ये वो पावर है जो मोबाइल के चार्जर से आपके मोबाइल में जा रही है? कौन सी पावर की बात कर रहे हैं? सर बॉडी स्ट्रेंथ. सर हमारे अंदर की पावर. सर बॉडी स्ट्रेंथ. Sir, body strength. सर बॉडी Mental आपकी वॉइस कुछ नहीं आ रही है. सर बॉडी स्ट्रेंथ. सर बॉडी स्ट्रेंथ. सर बॉडी स्ट्रेंथ. Okay, stop. Yeah, stop. Yes, I got the answer. सर बॉडी स्ट्रेंथ. हाँ, ठीक है, पता चल गया मुझे. ठीक है. Stop. So हम किस पावर की बात कर रहे हैं? हम उस पावर की बात नहीं कर रहे हैं जो हमारे घर में बिजली है. हम उस पावर की भी बात नहीं कर रहे हैं जो हमारे मोबाइल को पावर दे रहे हैं. हम उस पावर की भी बात नहीं कर रहे हैं जो बड़े बड़े पावर हाउस से हमें मिल रही. हम एक ऐसी पावर की बात कर रहे हैं जो हमें कहीं बाहर से नहीं मिलेगी, वो हमें किसी सोर्स से नहीं मिलेगी. वो पावर कहीं अंदर ही छुपी हुई है और उस पावर को हमें ढूंढ के निकालना है. तो वो पावर क्या है? वो पावर है ये पावर ऑफ आवर बॉडी. किसी ने बोला पावर ऑफ आवर बॉडी, फिर किसी ने बोला पावर ऑफ आवर माइंड, फिर किसी ने बोला पावर ऑफ आवर इंटेलिजेंस, और पता नहीं किसी ने बोला या नहीं, बट देयर इज वन मोर पावर ऑफ आवर स्पिरिट. अच्छा, इसको समझते हैं थोड़ा सा. व्हाट इज पावर ऑफ आवर बॉडी? डोंट आंसर, मैं बताऊंगा. हिंदी में इसको हम बोलते हैं शारीरिक बल, या हम इसको और अलग भाषा में कह सकते हैं बाहुबल. ठीक है. अच्छा, हम सब ने एक मूवी देखी थी बाहुबली. कोई हाँ ना नहीं बोलेगा, बस सुनते जाएगा मुझे. हमने एक मूवी देखी थी बाहुबली, और उस मूवी में हमने देखा एक हीरो था, उसका नाम था बाहुबली, अमरेंद्र बाहुबली. उसको क्यों बाहुबली बोलते थे? क्योंकि उसकी भुजाओं में, उसकी बाहों में, उसके पूरे शरीर में बल था, और उस बल, वो जो उसके पास स्ट्रेंथ थी, वो उस स्ट्रेंथ को डेमोन्स्ट्रेट भी करता था. एक बार उसने अपनी मदर को हेल्प किया तो शिवलिंग को एक जगह से उठा के दूसरी जगह उठा लिया, बहुत बड़े शिवलिंग. फिर जब उसने रीइंकार्नेशन लिया, नेक्स्ट बर्थ में जब वो आया, तो एक बड़े सी मूर्ति को, बड़े स्टेच्यू को सब लोग मिलके सीधा कर रहे थे, बट उनसे वो हो नहीं जा रहा था. तो उनकी रस्सी टूट गई. तो अचानक से बाहुबली मैदान में आया और उसने उस रस्सी को पकड़ लिया और उस बड़ी सी मूर्ति को, जिसके नीचे बहुत सारे लोग दब के मर गए, उसको खड़ा कर दिया. तो सब लोग बोले बाहुबली बाहुबली बाहुबली, है ना? हम सब ने देखा. तो हम देखते हैं कि ये क्या है. ये एग्जाम्पल है बाहुबल का, उसके शारीरिक बल का. वो उस शारीरिक बल से कमजोर लोगों को नहीं मारता है. वो उस शारीरिक बल से शत्रुओं को, उस शारीरिक बल से दुश्मनों को मारता है, और जो बुरे लोग हैं उनको मारता है. ठीक है. तो ये एग्जाम्पल है पावर ऑफ आवर बॉडी, बाहुबल. नाउ कम्स पावर ऑफ आवर माइंड. ओके. तो अब बॉडी की हमने बात कर ली, बॉडी हमने बहुत स्ट्रांग बना ली, बॉडी हमारी बहुत कुछ कर सकती है, बट हमारे पास माइंड इतना स्ट्रांग नहीं है. स्ट्रांग मतलब अगर कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जब मेरे को अपने माइंड का यूज करना पड़ेगा मुसीबत में, मेरे तो पसीने छूट जाएंगे, अरे हाहाकार मच जाएगा, मैं कैसे डिसीजन लूं. ओके, माय माइंड इज नॉट दैट स्ट्रांग, इवन माय बॉडी इज स्ट्रांग. सो दिस इज my power of mind. Let's understand from the example of Bahubali movie only. Bahubali movie में उसकी पूरी लाइफ जो है, हीरो की जो पूरी लाइफ है, वो बहुत डेवस्टेटिंग है. पहले तो वो डिजर्विंग था, उसको किंगडम नहीं मिला. उसके बड़े भाई को किंगडम मिल गया जो कि डिजर्विंग नहीं था, और दूसरा he was a very mischievous man, not good man. Okay, but Bahubali was the man of people, but still he did not become the king.
लोग नहीं चाहते थे कि भल्लाल देव राजा बन जाए, बट मजबूरी में भल्लाल देव को राजा बना दिया गया। और किसी को भी ये बात पसंद नहीं आई। लेकिन लुक एट दिस मैन बाहुबली, he promised his mother that whatever she will say he will obey, he will follow, okay, and he took that decision with full heart and he accepted it and he started performing his duties. वो अपनी ड्यूटी पूरी करने लगा without any question. So this is called power of mind. वो इन छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं हुआ। He had this hold of his nerves. Okay, तो ये हो गया पावर ऑफ माइंड। और जब भी लड़ाई हुई, जब भी युद्ध हुआ, हमेशा कामली उसने हैंडल किया। नाउ कम्स पावर ऑफ आवर इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मीन्स बुद्धि, हम सबके पास Wait, है। don't you? Okay, in Bahubali movie we have seen the example of intelligence. कहाँ पे हमने देखा? During the war, when everyone was fighting against the enemy, a common enemy was there, very dirty and very बहुत डरावना सा आदमी था। Everybody was fighting, so but Bhallal Dev had a very big Sir, army. your voice is not audible. Shantanu, is it my voice is not audible? No, sir, आप audible है. You're Yeah, audible. please, if your voice is not, my voice is not coming, then maybe it's the issue of your internet connection. So please don't interrupt in between. Try to find a suitable place, okay, where your internet connection is good. Okay. So now let's talk about the power of intelligence. Power of intelligence उसने कब दिखाई? जब लड़ाई हो गई, शुरू हो गई, बाहुबली के पास सेना कम थी, भल्लाल देव के पास बहुत सेना थी, और सारा दुश्मन जो था वो बाहुबली के सैनिकों को मार रहा था। तो बाहुबली ने सोचा कि कैसे इनसे निपटा जाए इतने कम आर्मी के साथ। तो उसने अपने सैनिक को आदेश दिया, उसने बोला कि कैनन बॉल, जो गोला होता है वो फेंकने को। तो कैनन बॉल ऐसे गया और बहुत बड़ा सा स्टोन का एक बोल्डर था, बट वो लोग बच गए, उससे कुछ नुकसान नहीं हुआ। जो सेना थी वो इधर उधर चली गई और कैनन बॉल गिरा जमीन पे और किसी को भी नुकसान नहीं किया। तो बाहुबली ने सोचा क्या करूं? तो नाउ ही came up with this idea using his intelligence, his buddhi. Why? Because his mind is calm in war situation. He used his buddhi and he said कि हम दो कैनन मशीन रखेंगे पैरेलली और उनमें एक क्लॉथ को बांध देंगे, कपड़े को बांध देंगे, और फिर वो दो कैनन जाएंगे दुश्मनों के ऊपर और वो कपड़ा जो होगा वो भीगा होगा किससे? सम इनफ्लेमेबल मटेरियल, सम ऑयल और समथिंग, सो दैट उस पर आग लगाई जा सके। तो देखते हैं कि जैसे ही वो कैनन बॉल छूटते हैं, बड़ा सा कपड़े का साथ गोला जाता है और वो सेना के ऊपर गिर जाता है और पूरी सेना उन कपड़ों के टेंट ऐसा बन जाता है, उसके नीचे फंस जाती है। और फिर बाहुबली निकालता है एक एरो और उस एरो की टिप पे होते हैं फायर और उसको छोड़ देता है उनके ऊपर और वो जाके लगता है कपड़े पे और पूरी सेना जल जाती है। सो ही यूज्ड हिज इंटेलिजेंस, राइट? सो लुक, हम मूवीज से कितना कुछ सीख सकते हैं, किसी एक हीरो की लाइफ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमने देखा उसने अपने बाहुबल का इस्तेमाल किया, फिर अपने मनोबल का इस्तेमाल किया, फिर अपने बुद्धिबल। अब ये तो हम सब जान गए ये तीनों चीजें। अब यहाँ पर एक चीज है जिसको हम कहते हैं पावर ऑफ आवर स्पिरिट। तो ये क्या है? इसको जान लेंगे तो क्या हो जाएगा, या इसको नहीं जानेंगे तो क्या हो जाएगा? तो पावर ऑफ स्पिरिट को समझने के लिए हमें एक चीज समझनी पड़ेगी। देखो, जब भी हमारे घर पे कोई हमारे मोबाइल डिवाइस, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, टीवी, मिक्सर ग्राइंडर, बहुत सारे डिवाइस, तो जब भी हमें उन्हें चलाना होता है तो हमें पावर चाहिए। मोबाइल को पावर देता है बैटरी, बैटरी को पावर देता है चार्जर, चार्जर को पावर देता है सॉकेट, सॉकेट को पावर देता है मीटर, मीटर में जो पावर आता है वो आता है सामने जो पोल है उससे, जो लाइन है इलेक्ट्रिसिटी लाइन, इलेक्ट्रिसिटी लाइन में पावर जो आता है वो ग्रिड से आता है, ठीक है? ग्रिड में जो पावर आता है वो पावर ग्रिड से आता है,
मतलब जो डैम्स होते हैं, रिवर होती है, वाटर गिरती है टरबाइन पे, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। वो इलेक्ट्रिसिटी पावर ग्रिड में आती है, पावर ग्रिड से वो बहुत ज़्यादा वो वोल्टेज की होती है, उसको कन्वर्ट किया जाता है। फिर हमारे घर में जब आती है तो बहुत कम वोल्ट की आती है, क्योंकि हमें इतनी बिजली नहीं चाहिए। तो देखो एक पूरा का पूरा सोर्स है, लेकिन हमें लगता है इलेक्ट्रिसिटी तो हम बिजली का बिल पे करते हैं वहां से आती है। नहीं, वो बहुत दूर से आती है, उसकी जर्नी बहुत लंबी, उसका सोर्स बहुत बड़ा है। तो सोचो अगर ये जो ग्रिड है, ये डैम है, ये काम करना बंद कर दें, अगर इनका काम बंद हो जाए तो क्या होगा? हम अपना मोबाइल नहीं चार्ज कर पाएंगे, हमारा इन्वर्टर भी चार्ज नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। मतलब कि जो वो सोर्स है जहां से पावर आ रही है, चाहे वो बहुत बड़ी पावर है, हमें उसका केवल 1% चाहिए, लेकिन वो हमें चाहिए। वैसे ही है पावर ऑफ अवर स्पिरिट। ये वो पावर है जो हम सारी इन पावरों को चलाती है। ये वो पावर है जो इन सब पावरों का सोर्स है और इन सब शक्तियों का सोर्स है। ओके, पावर ऑफ अवर इंटेलिजेंस, अवर माइंड, अवर बॉडी। सो पावर ऑफ अवर स्पिरिट इज लाइक पावर ऑफ दैट डैम, जो डैम में जो टरबाइन बनी हुई है, जहां से बिजली आती है। तो अगर हम उस सोर्स को जान जाएंगे तो हम इन सारी पावर को अपने अंदर संभाल लेंगे। If we know about the power of our spirit and if we practice, how can we bring this power in all areas of our daily life? Then we can work on our body, we can work on our mind and our buddhi. तो इस पावर ऑफ आवर स्पिरिट के बारे में हम अपने 21 डे चैलेंज में जानेंगे, ठीक है? और उससे हम अपने जीवन को कैसे चेंज कर सकते हैं ये भी जानेंगे। ओके, हमने बात करी 21 डेज, हमने बात करी पावर। अब बचता है चैलेंज। नाउ ये पिक्चर देखो, आप सबको उंगली दिखा रहा है और कह रहा है कि क्या आप ये चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं? क्वेश्चन आता है, व्हाट डू वी नीड नाउ? वी नीड चैलेंज। सो वी नीड व्हाट? वी नीड दिस। किसी को कुछ याद आ रहा है? कोई कुछ रिलेट कर पा रहा है इससे? देखो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। Then that I can change myself, hoping to develop a new habit, creativity, to learn more creative things, positivity in mind, improve mind power, sharp mind, singing. I will become more patient and active, want to learn new things and enjoy holistic development, better focus in studies, meditation and other mind power games, yoga, knowledge, meditation. We'll get to learn something new. Sir, calm and positivity. ये जितनी भी चीजें आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये सब आप लोगों ने लिख के भेजा था हमको। वो जो फॉर्म आप लोगों ने भरा था और उस पे लिखा था कि व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस, ओके? तो आप लोगों ने अपनी एक्सपेक्टेशंस बताई कि हमें पॉजिटिव माइंड चाहिए, हमें माइंड पावर इंप्रूव करना है, हमें शार्प माइंड चाहिए, हमें नॉलेज चाहिए, हम योगा करेंगे, हम मेडिटेशन करेंगे। सो दैट मीन्स दिस इज योर गोल, दिस इज द चैलेंज इन 21 day power challenge. We have defined 21 days, we have defined power. Now what is challenge? This is the challenge. यही है वो चैलेंज जो हमें इस 21 डेज में करना है, यही है हमारा गोल जो हमें करना है। और जो आपने डिसाइड किया है आप उसको अचीव करेंगे। ये आपको अपने इस 21 डेज में अपनी पूरी लाइफस्टाइल में लाना है। सिर्फ योगा ही करेंगे? ओके, नाउ चैलेंज तो हमारे पास आ गए, ओके? उस चैलेंज को हम कन्वर्ट कर देंगे गोल्स में और सीखेंगे एक बहुत अच्छी सीख स्वामी विवेकानंद की। He said, take up one idea, make that one idea your life, think of it, dream of it, live on that idea. इसको हम ब्रेक करके समझेंगे। टेक अप वन आइडिया, एक आइडिया लो जिंदगी में, जीवन में बस एक आइडिया भी अगर लोगे आप, वो भी इनफ है। प्रोवाइडेड यू हैव मेड दैट वन आइडिया योर लाइफ। ऐसा नहीं कि एक आइडिया लिया और बस 2 दिन के बाद बोला कि अरे भाई साहब ये आइडिया तो बड़ा भारी पड़ गया, चलो दूसरा ढूंढ लेते हैं, है ना? ऐसा नहीं। Make that one idea your life. For example, you want to become someone,
something after maybe 5, 10, 15 years. So bring that idea in your mind, in your head, picturize yourself and make your life according to that. Means take some corresponding actions from today onwards. Think of it, dream of it, live on that idea. I'll give you an example. देखो जब क्या होता है, एक छोटा सा बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा जब 6-7 महीने का हो जाता है तो उसकी एक हरकत होती है, ठीक है, वो क्या करता है, वो इधर उधर भागता है, कुछ ना कुछ पकड़ने की कोशिश करता है, उसके हाथ में जो आ जाता है वो सब पकड़ के मुंह पे डालने लग जाता है, क्योंकि उसके टीथ आने लग जाते हैं। तो उसको ये पता नहीं है, क्योंकि उसकी में इतना इंटेलिजेंस डेवलप हुआ नहीं है कि ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए गलत है। तो वो जो भी मिलता है वो उसको उठा के मुंह पे डालने लग जाता है, और आप बोलते हो अरे नहीं, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, डोंट डू दिस, आप उसके हाथ से छीन लेते हो और वो चिल्लाता है लाइक दिस, एंड सडनली उसका अटेंशन लेवल दूसरी जगह चला जाता है। इट्स नॉट लाइक कि वो उस बात पे अड़ गया, नहीं मुझे चाहिए, नहीं मुझे चाहिए, अभी नहीं, बाद में, वो 1-2 साल के बाद अड़ेगा, लेकिन जब वो 6-7 महीने का है ना, तब आप अगर उससे वो चीज छीन लेंगे तो सडनली वो कहेगा अरे चलो छीन लिया, अब मैं क्या करूँ, ये बॉटल मिल गई, हाँ मैं इसको खाता हूँ, स्टार्ट डूइंग इट, एंड सडनली अरे dirty bottle, don't do that, your mobile phone, okay, I'll eat it, like this. So he doesn't know actually. Okay, but look at this process here, taking one idea at a time. Okay, that child is taking one idea at a time. Bottle का idea आया तो चलो अब इसी के पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है, completely focused, engrossed, मतलब आप उसको उसके हाथ से छीनो उसको, वो आपको देगा नहीं, पूरा गंदा कर देगा, और एकदम ऐसे ऐसे उसके पीछे लगा रहे। और उससे जब आप थोड़े से बड़े हो जाते हैं, जब आप 1 या 2 साल के हो जाते हैं, और आप अपने मम्मी पापा को बोलते हो कि मुझे टॉय चाहिए, क्योंकि आपकी फ्रेंड के पास एक टॉय है, और मम्मा कहती हैं नहीं अभी टॉय वॉय नहीं, अभी तो पिछली बार दिया था, लाइक दिस, तो आप बिल्कुल पैर पटकने लग जाओगे, और फिर मम्मा कहेगी नहीं 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 मिलेगा, तो फिर आप नाराज होकर सो जाओगे, और सपने में आपके आएगा वो टॉय, तो लगे हेलो, और आपको सपने में भी दिखेगा, आप इतने खुश हो जाओगे अरे मुझे सच में मिल गया, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप दैट टॉय इज नॉट देयर। ओके, सो जस्ट लाइक दैट बॉय, जस्ट लाइक दैट चाइल्ड, वी हैव टू ड्रीम ऑफ इट, हमको सपना भी देखना है उस आइडिया का, और लिव ऑन दैट आइडिया, उस आइडिया के साथ जीना भी है। ओके, नाउ लेट द ब्रेन, मसल्स, नर्व्स, every part of your body be full of that idea, and just leave every other idea alone. बाप रे, स्वामी जी ने कितनी बड़ी बात बोल दी कि अपनी ब्रेन में भी, अपनी मसल्स में भी, अपनी नर्व्स में भी, और बॉडी के हर एक पार्ट में वो आइडिया भर दो। अब कैसे भरेंगे, अब ब्लड भरा हुआ है, ब्लड निकाल के आइडिया तो भर नहीं सकते, कैसे भर सकते हैं आइडिया? तो ब्रिंग दैट आइडिया इन योर माइंड, every time think of that idea, use corresponding action towards achieving those ideas. क्या होगा, slowly steady your personality will change in a very in a positive manner. तो ऐसा लगेगा कि अरे ये तो एकदम सोच के बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसा उसने सोचा कि इसको बनना है, and he started doing it in his life or her life. अगर मुझे कुछ बनना है, मैं आज ही से अपना एटीट्यूड ऐसा डेवलप करने लगा, तो लोगों को भी लगेगा कि अरे देखो इसने बोला था कि he will attain concentration of mind. Now look at him, how concentrated he is whenever he is doing something. For example, if you're just cleaning your clothes, for example, if you're wearing your clothes, highly concentrated, no concentration, no distraction at all, attention to detail. If you are cooking something, complete focus, complete attention. That is what he is talking about. Make that idea your life. What does that mean? Means that you bring that idea in your life so that the whole life, reflection of life is like that. That person is living that idea. कि ये आदमी तो उस आइडिया को जी रहा है. And leave every other idea alone. That is also the statement. बाकी के ideas side. Always look for the higher ideals in life. Lower ideals sideline करना है. This is the way to success. Only key to success. Okay, if you want to get success in all areas of your life, whether your studies, your personal life, all different areas, this is the only way to success. Okay, now what do we do next? Okay, तो ये जो गोल की हमने बात करी थी, इस गोल को अचीव करने के लिए हमें ये 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए.
शॉर्ट फॉर्म में हम कहेंगे इसको FDP. कितना अच्छा साउंड कर रहा है. I need FDP. 1 kg FDP प्लीज. हम रेस्टोरेंट में जाएंगे और वहाँ FDP ऑर्डर कर देंगे. Okay, it sounds so nice. What is FDP? The screen is not visible. Shantanu, my screen, is it visible? Visible. Yeah. Is it visible? It is visible, beta. Maybe you can rejoin or something. Yes, sir, it is visible. Yeah. ठीक है. आप सब मत बोलना. Okay. So to achieve this goal, we need threefold formula. FDP. What is F? What is D? What is P? I'm not asking you. कोई guess कर सकता है तो raise hand option पे click करेगा. कोई अगर guess कर सकता है what is F, what is D and what is P? Don't speak. Focus. Just raise your hand. Co-host will identify. Just raise your hand. Don't go to chat box. What do you mean by F? A vague guess. You don't have to be right about anything. जरूरी नहीं आप सही हो. Don't hesitate. Raise your hand if anybody. Shantanu, is there anyone? Srishti Niranjan. Srishti Niranjan, yes. I think it's focus, dedication, and pursue. Focus, dedication, and perseverance. Pursue. Okay. Pursue. Pursue. Whatever. That is also needed. However, is there anybody else who has raised a hand? Devraj Jha. अच्छा, बताओ झा जी. झा जी बोलिए. Focus, discipline, Okay, and P for activity. activity. Find the difference, power. अच्छा, power. Okay, good. Okay, चलो मैं बताता हूँ. F stands for faith. Faith. श्रद्धा. Okay. Confidence. Another meaning. आत्मविश्वास जिसको हम हिंदी में बोलते हैं. Okay. Faith. P party. D stands for determination. Indomitable determination. दृढ़ निश्चय जिसको बोलते हैं हिंदी में. आ रहा हूं बेटा, रुक जाओ. And P stands for what? Positivity. So presence of mind. P. Practice. P for practice. P for practice. F for faith. D for determination. P for practice. देखो song बन गया कितना अच्छा. So F for faith, D for determination, P for practice. Faith in yourself. Faith in process. Whichever process you have brought in yourself. Self-development and joyful transformation is the tagline of this 21-day power challenge. So that is called a process. You have to have faith. Okay. Then determination. If I am telling you that, okay, from tomorrow onwards, we will have a certain regime, we will follow a certain regime morning and evening. So this determination should come from your side that I will participate. Circle morning में कितने बजे? Don't bring unnecessary question right now. You will get ample amount of time to ask questions related to what we are going to do in 21 days. Okay? अभी पहले it is an orientation program. तो इसको पहले समझ लो. जब आप समझ जाओगे उसके बाद question पूछना. P stands for practice. Okay? So that means whatever you are learning, you have to practice it every day. Keep practicing. Keep bringing it in your daily life every day. Okay? It's not like ठीक है faith तो है सर, थोड़ा डिटर्मिनेशन तो है मेरे को, पर मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ. तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे तो वो आपकी डेली लाइफ में नहीं आ पाएगा और वो चैलेंज भी नहीं रहेगा. ओके, लेकिन आप करेंगे प्रैक्टिस. क्यों? क्योंकि आपने वो फॉर्म फिल किया था. वो आपने फॉर्म फिल किया था और आपने बोला था कि यू वांट टू चेंज योर लाइफ, यू वांट टू ब्रिंग पॉजिटिव इन योर लाइफ, यू वांट टू बिकम मोर पेशेंट एंड एक्टिव, you learn thinking, holistic development. ये सब आप ही ने तो बोला था. तो ये अगर ये आपने बोला है तो this is your goal, this is the challenge which you have taken in your life, the responsibility. ये आपकी जिम्मेदारी है. अब 21 days में आपको अपना ये गोल अचीव करना है. कैसे करना है वो हम हेल्प करेंगे आपको. Okay, so this formula FDP, faith, determination and practice. Okay, now let me give you a different perspective. अच्छा, imagine करो
अभी तो कोविड टाइम है, हम कहीं जा नहीं सकते, हम कहीं गए भी नहीं होंगे, बट कोविड से पहले हम लोग बहुत जगह गए होंगे और हमने प्लान भी किया होगा हम कोविड जब सही हो जाएगा हम बहुत अच्छी अच्छी जगह जाएंगे। तो जस्ट इमेजिन आप उस जगह जा रहे हो या आप किसी एक बहुत अच्छी जगह गए थे, जस्ट इमेजिन दैट, ओके। एंड मे बी आपने अपनी पर्सनल कार से गए या आपने एक बस से गए या आप ट्रेन से गए, अलग अलग मोड ऑफ ट्रैवलिंग आपने यूज किया, तो आपका एक्सपीरियंस भी अलग था। ट्रैवलिंग चाहे अलग होगा, बट आपका एक्सपीरियंस जो था वो ये था कि आप केवल जर्नी की डेस्टिनेशन के लिए नहीं गए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ से मसूरी जाना है तो आप ये सोच के नहीं जा रहे हो कि अरे मसूरी कैसा होगा कैसा होगा कैसा होगा, बट इन बिटवीन जितने भी ऑल हिल स्टेशन आएंगे या और भी स्टेशन आएगा उसको भी इंजॉय करोगे। हो सकता है आप पहली बार मसूरी जा रहे हो और आपको रास्ते में बहुत कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली जो आपने पहले नहीं देखी थी। तो बेसिकली व्हेन वी ट्रैवल इट इज नॉट जस्ट अबाउट आवर डेस्टिनेशन बट स्मॉल स्मॉल स्टॉप ओवर्स जहाँ पे हम रुकते हैं, खाना खाते हैं, कुछ मिलके कुछ खरीदते हैं, कुछ फोटोग्राफ खींच लेते हैं, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वो मेमोरीज हम लोग हमेशा अपने साथ रखते हैं। तो डेस्टिनेशन तो हम डेफिनेटली पहुंच ही जाएंगे क्योंकि हम वहाँ जा रहे हैं, लेकिन उस बीच में भी कुछ ना कुछ छोटा बहुत हमें मिल जाता है तो हम उसको अपने साथ रख लेते हैं, है ना। तो ऐसा ही कुछ इस 21 डेज चैलेंज में भी होगा। इस 21 डे चैलेंज में आपको ऐसी ही कुछ चीजें मिलेंगी जो आपको बताएंगे हमारे शांतनु सर। और वो क्या चीजें हैं देखो मैं आपको बताता हूँ। वो स्टार्ट होगी जे और एच और पी से, ठीक है। अब देखो शांतनु सर आ गए हैं, तो शांतनु सर तो एकदम अभी देखो आप लोगों से क्या क्या करवाएंगे। ये जो आप बैठे हो ना इतने प्यार से आराम से अपने कंफर्ट जोन पे, अभी देखो शांतनु सर क्या गुल खिलाने वाले हैं। तो ओवर टू शांतनु। थैंक यू सर। तो लोगों ने अभी देखा कि हमें 21 डेज अपने कैसे प्लान करने हैं, हमें क्या क्या पैक करना है, खाना रखना है या नहीं रखना है, कपड़े रखने हैं या नहीं रखने हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम साथ में लेके जाएंगे, कौन कौन सी चीज़ें हम साथ में लेके नहीं जाएंगे। बट एक चीज़ जो है वो हमें हमेशा अपने साथ रखनी होती है, लेकिन हम गौर नहीं करते हैं उस पर, और वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। और वही चीज़ इन जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना 3 स्टॉप ओवर्स, उनमें छुपी हुई है। लेकिन उस छुपी हुई चीज को हम एक एक्टिविटी के जरिए निकालेंगे बाहर आपके अंदर से। लेकिन करना क्या होगा आप सबको करना है डांस। आप सबको डांस करना है, ओके। मैं यहाँ पे एक सॉन्ग प्ले करूंगा और आप सबको अपने कैमरास ऑन करके ऑन करने हैं। अपने माइक को ऑन नहीं करना है आप सभी को डांस करना है। यहाँ पर एक सॉन्ग प्ले होगा, लेकिन उसमें एक चीज और है, कुछ कंडीशंस हैं, वो ध्यान से सुनिएगा। उस डांस में आप कोई भी प्रॉप यूज कर सकते हो, कोई भी फनी फेस बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन सबको डांस करना है। कोई अपना गिटार भी बजा सकता है, कोई जो जिसको तकिया लेके डांस करना है वो भी कर सकता है। जैसे होता है ना बाथरूम सिंगर्स होते हैं ना, इस तरह से समझ लो कि हम सब बाथरूम डांस, हम लोग अपने अपने बाथरूम में हैं और हमें डांस करना है। अभी अपना अपना ये जो रूम है ना आपका, उसको बाथरूम समझ लो, आपको डांस करना है। बाथरूम में तो बहुत सारे गिटार भी बजा सकते हैं, गिटार बांसुरी जो आपका मन करे, फ्री होके, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मजे के साथ हर चीज करनी है। और उसमें पता क्या होगा, बीच बीच में ना वो सॉन्ग रुक They have to जाएगा। open their camera, everyone। ये कंडीशन है कि सबको कैमरा ऑन रखना पड़ेगा और म्यूट रखना पड़ेगा खुद को। हाँ, तो जिसने अपने हाँ, कैमरास तो ऑन ये नहीं भी clear किए कर दो। वो अपने कैमरास ऑन कर सकते हैं, कर लीजिए प्लीज, और रेडी रहेगा। हाँ, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, बीच में ना सॉन्ग पे एक जगह पे स्टॉप किया जाएगा, तो आप सब जिस पोजीशन में होंगे उसी पोजीशन में आपको फ्रीज हो जाना है। अगर किसी का हाथ हवा में है तो वैसे ही फ्रीज होना है। स्टैचू, जैसे स्टैचू गेम नहीं खेलते, किसी को हम बोलते थे स्टैचू, तो वो स्टैचू हो जाता है एक जगह पर। तो इसी तरह से जैसे ही गाना रुकेगा वैसे ही आपको स्टैचू हो जाना है, हिलना नहीं है बिल्कुल भी। और जब फिर से गाना प्ले होगा तो फिर से आपको डांस करना है, ठीक है।
जितनी बार भी गाना प्ले होगा आपको डांस करना है, जितनी बार भी गाना रुकेगा आपको स्टॉप करना है, खुल के मजे से डांस करना है। इसमें कोई पाबंदी नहीं, कैसे भी कर सकते हो। सभी टीचर्स और जो भी जितने भी यहाँ लोग हैं, पेरेंट्स भी अगर देख रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं साथ में। फुल अच्छे से एंजॉय करना है इसको। फिर हम जानेंगे ये क्या है JHP। JHP तो कुछ नहीं है, ये तो सब हमारे अंदर ही है। चलिए, तो अभी एक गाना प्ले होगा आपकी स्क्रीन पर। रेडी? చకరక చీచాచో చకలోరం గండో వండో లకరకటం అక్కో టక్కో ఇడిగిడి గిడిగో ఇడిపాయ్ విడిపాయ్ చికిచకచో గిలిగిలి మల్ సులుసులు మల్ మకరక హుకుబుకురే టుకుబుకురే చకలక బిక్కో చిక్కో సిలి సిలి సిలిగో బగడదుం జగడదుం చికిచకచో। आप सब डांस कर सकते हो। प्लीज सूरज सेजवाल डांस करो भाई, बैठे क्यों? कौन कौन बैठा है? जो बैठा है सब डांस करेंगे, कोई रुकेगा नहीं। और स्क्रीन चादर ओढ़े या खड़ा कोई, हे देखो देखो डांस करेंगे, कोई क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई, बारिश है या। गाना तो रुक गया, फ्रीज। अच्छा, पहली बात, ये स्क्रीन पर जो कुछ भी आ रहा है ये नहीं आना सब रुक गए। आपको बोलना नहीं, आप फ्रीज हो। फ्रीज में थोड़ी बोलते हैं, जो फ्रीज होता है वो नहीं होता। पंकज सर प्लीज आप एनोटेशन हटा दीजिए, डिसेबल कर दीजिए वहां से। ओके, सभी लोग अभी रुके हुए हैं। I can't do that, शांतनु, you have to do that. ओके 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 और मैं तो वैसे भी फ्रीज हूँ, मैं तो काम नहीं कर सकता। ओके तो फ्रीज होने को बोला गया है। ओके, डन सर। Please remove the annotation. Please remove. I can't do that. You have to do that. सही। ऊपर पे जाओ तो हो जाएगा। ओके, राउंड 2 बताना, हम फ्रीज हैं। आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं, हाँ हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। सभी लोग बढ़िया से मस्ती के साथ, ये वेरी गुड। सापा धारे गारे गामा पासा, बम 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 बोले, बम चिक बोले, और मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे, बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं। फ्रीज, एवरीवन स्टॉप, स्टैचू जो जहां पर है वहीं पर रुक जाए। कितने सुंदर लग रहे हो आप सब फ्रीज होके। क्या क्या फनी फनी चेहरे बना के रखे हैं। कोई किसी का हाथ हवा में है, किसी की गर्दन टेढ़ी है, कोई खड़ा है, कोई बैठा है। वाह, बहुत बढ़िया। अरे किसी के तो हाथ ऊपर है, कोई तो बिल्कुल स्टैचू हो गया। अरे किसी ने तो मंकी फेस भी बनाया हुआ है। वाह, स्टार्ट अगेन, डांस। ऐसे भी सोचो ना, सोचो सूरज रोज नहाए या बाल भिगो के ये बुद्धू बनाए, हमें ये सारे तारे टिमटिमाए, या फिर गुस्से में कुछ बड़बड़ाते रहे। खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ,
चलो नए ख्वाब बुन ले रट रट के क्यों टैंकर फुल आंखें बंद तो डब्बा गुल ओए बंद दरवाजे खोल रे हो जा बिंदास बोल रे मैं भी हूँ तू भी है ओ मैं भी तू भी हम सब मिलके बम चिक बम बम चिक बम बम चिक बम बम चिक बम फ्रीज स्टॉप फ्रीज रुक जाएंगे सभी अरे कोई तो गिटार लेके भी रुका हुआ है वाह बहुत बढ़िया ये तो क्या क्या फनी फेसेस है अरे एक तो लटक गई हवा में एक लोग लटक गए हवा में बिल्कुल उड़ रहे हैं वो तो वाह अरे क्या क्या पोज हैं बिल्कुल बढ़िया से अरे कोई हिलो मत जो हिल रहे हैं मैं उनको भी देख रहा हूँ पता है सब दिख रहे हैं मुझे अच्छा तो ये अब ना जो अब लास्ट में बजेगा ना बिल्कुल लास्ट गाना खत्म होने वाला है तो जिसने भी अभी बहुत अच्छे से नहीं नाचे ना खूब जोर से मस्ती के साथ नाचना बिल्कुल लास्ट है हाँ ओके अच्छे से बिल्कुल स्टार्ट बम बम चिक बम बम चिक बम 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 ऐसी रंगों भरी अपनी दुनिया है क्यों सोचो ना प्यार से चुन के इन रंगों को किसी ने सजाया ये संसार है जो इतनी सुंदर है अपनी दुनिया ऊपर वाला क्या कोई कलाकार है खुद के सोचे आओ पंख जरा फैलाओ रंग नए बिखराओ चलो 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 नए ख्वाब बुन ले बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे बम बम बोले ये लो ये आपका और ये तो कैसा लगा मजा आया Yes, sir. मजा आया Yes, sir. अरे वाह 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 सबको मजा आया सबको थोड़ा मजा आया बहुत मजा आया बहुत ज्यादा मजा थोड़ा मजा आया बहुत मजा सर बहुत ज्यादा मजा आया बहुत ज्यादा आया बहुत ज्यादा मजा आया सबको मजा आया सब बिल्कुल मस्ती के साथ नाच रहे थे बहुत मजा आया बहुत मुझे तो बहुत ज्यादा मजा नहीं आया I think the full form is joy of happiness. मुझे तो बहुत ही ज्यादा मजा आया बहुत 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 मजा आया सर आपको तो मजा आना पड़ेगा सर बहुत मजा आ गया बढ़िया से ना सबने अपनी बाथरूम सिंगर वाली पूरी डांस पे सब अच्छे से अपने सब ने गिटार लेके बॉटल लेके और भाई एक जन के फनी फेसेस बनाए ना मैंने उसके फोटो स्क्रीनशॉट सब लेके रखे मस्त आप लोगों को दिखाया जाएंगे बाद में तो सबको बहुत मजा आया क्या बहुत मजा आया Yes, sir. Yes, sir. ठीक है Yes, sir. ये मुझे पता चल गया ओके 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 अभी अब आंसर नहीं देना है अब मैं बात करूंगा तब मैं बोलूंगा तब आंसर देना ओके अभी जस्ट म्यूट कोई बोलेगा नहीं ठीक है तो इतने दिन से हम घर में बंद है ना हम दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं लेकिन हमने कभी गौर नहीं किया कि जिस तरह से हम अभी नाच रहे हैं या हैप्पी हैं बिल्कुल जॉयफुल होके हम कितना हैप्पी हैं हैप्पीनेस हमारे अंदर पूरी भरी है कूट कूट के लेकिन हमने ध्यान ही नहीं दिया था कि कहीं खोई हुई थी
लेकिन बस ऐसा हो गया था जैसे सूरज के सामने आकाश में बादल आ जाते हैं ना, तो बादल सूरज को ढक लेता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि सूरज है ही नहीं वहां पर सूरज होता है। इस तरह से ये जो हैप्पीनेस आपकी अभी बाहर निकल के आई ना, आपका ये जॉलीनेस, जॉयफुलनेस आपका जो बाहर निकल के आया, ये सब आपके अंदर था, कहीं नहीं गया था। लेकिन हम देख नहीं रहे थे, हम तो बिल्कुल खो गए थे कहीं और ही। हमारे आसपास इतना सारा हो रहा था ना, हम भटक से रहे थे। तो जो ये चीज अभी आपने ना बिल्कुल एक्टिव होके, बिल्कुल जॉयफुल नेचर के साथ, हैप्पी नेचर के साथ ये चीज अभी ना आप लोगों ने, इस चीज को ना हमें 21 डेज भी कंटिन्यू रखना पड़ेगा कि जो भी आप यहाँ उसमें हैप्पीनेस जरूरी है, उसमें जॉयफुल होना जरूरी है। ये सारी चीजें हमारे साथ, हमारे अंदर छुपी होती हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत होती हैं, लेकिन हम गौर नहीं करते। हम गौर कब करते हैं? जब हमारे कोई दोस्त यार मिलते हैं। देखो अभी सब लोग, आप सब यहाँ पे फ्रेंड्स हो गए। कोई असम से, देखो असम में बैठे लोगों ने भी एंजॉय किया, गुवाहाटी और यहाँ पर जमशेदपुर में बैठे लोगों ने भी एंजॉय किया, दिल्ली में जो लोग हैं उन्होंने भी एंजॉय किया, हरिद्वार और हमारे जमशेदपुर, सब जगह पे लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया। और बहुत सारे लोग यहाँ पर जो भी आए, सब ने अपनी अपनी जगह पर एंजॉय किया। लेकिन अभी तक आपने ये किया नहीं था क्योंकि आपने ये देखा नहीं था, लेकिन ये चीज हमारे अंदर चल रही थी। बस हमने क्या किया, हमने वो बादल हटा दिए जो हमें बादल घेरे हुआ था। बहुत सारी परेशानी थी हमको, हम कुछ देर के लिए वो सारी परेशानी भूल गए। हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं आया कि बाहर कोविड है, क्या है, मुझे नहीं पता, मुझे तो बस डांस करना है। डांस किया, फनी फेसेस बनाए, गिटार बजाया, बिल्कुल ऊपर नीचे सब हिलाया। तो जो यहाँ स्टॉप ओवर्स की बात हो रही है, तो वो स्टॉप ओवर्स हैं हमारे जॉयफुल, हैप्पीनेस एंड पीसफुल, जो कि हमारा रियल नेचर है। What is of J? What is? Ma'am, can I? Sorry, can I tell? Please mute. JHP. मैं बता रहा हूँ। Tell JHP. हाँ मैं बता रहा हूँ। तो ये JHP है ना, जो ये हमारा रियल नेचर है, हमारे साथ हमेशा रहता है, जो अभी कुछ देर के लिए हमको दिखा, लेकिन इसको हमें 21 डेज बरकरार रखना पड़ेगा। तो जो ये रियल नेचर है वो क्या है? रियल नेचर है हमारा, जो रियल नेचर इज बीइंग जॉयफुल, बीइंग हैप्पी एंड बीइंग पीसफुल। हमेशा आपके साथ ये चीजें रहती हैं और इन चीजों को आपको 21 डेज बरकरार रखना है। अगर सोचो, अगर आप जॉयफुल नहीं होगे, हैप्पी नहीं होगे, पीसफुल नहीं होगे, तो आप सोचोगे अरे यार आज मैं नहीं जाता, क्यों जाऊंगा, मैं तो 2 दिन होके आया। आप क्या सिखा रहे हैं वहां पे? तो योगा कराते हैं, बस ऐसे मेडिटेशन कराते हैं, बस ऐसे कुछ भी चलता रहता है। तो नहीं, जब आपके अंदर वो आप सोचो कि नहीं, वहां पे हमारे अंदर ये जॉयफुल भी है, हैप्पीनेस भी है, पीसफुल है, हम तो भाई हमारा रियल नेचर है ये। तो जब आप ये सब चीजें आपके अंदर है, लेकिन आप इन 21 दिनों में, इन 21 डेज में इन चीजों को और निखारोगे। कभी देखा है एक लोटस फ्लावर होता है, जो कमल का फूल होता है, जब सुबह होती है तो वो थोड़ा सा खिला हुआ होता है, ओस की बूंदें होती हैं उस पर, है ना? लेकिन जब वो धीरे धीरे पूरा खिल जाता है तब तो और सुंदर लगता है। जब वो छोटा सा होता है तब भी सुंदर लगता है, जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो और सुंदर लगता है। तो हमारे अंदर ये जो हमारा रियल नेचर है, जॉयफुल, हैप्पीनेस, पीसफुल, सब है हमारे अंदर, लेकिन इसको और निखारना है और अच्छा करना है। और उसको अच्छा करते करते हमें अपने अंदर उस सेवा का भाव लाना है, दूसरों की मदद करने का भाव लाना है, जिसके जरिए हम ये रियल नेचर खाली अपने तक नहीं रखेंगे, हम लोगों में भी बांटेंगे, लोगों की भी मदद करेंगे। जिस तरह की अभी कंडीशन है उसमें ये बहुत जरूरी है और हमें ये करना पड़ेगा, और ये हमारे अंदर है, लेकिन हमने कभी गौर नहीं किया। लेकिन अभी इस 5 से 10 मिनट के डांस में, 4 मिनट के डांस में आपने बहुत अच्छे से, मस्ती से उसको जॉयफुल अपना पूरा बाहर निकाल दिया उस नेचर को। तो इस चीज को लेकर हम आगे चलेंगे, समझेंगे, और आगे 21 दिनों में हम और भी चीजें देखेंगे। ठीक है? What is the word for J? Word for J is joyful, H for happiness and P for peaceful. ठीक है? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
Over to you, Pankaj. Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. Yes, sir. Thank you, Shantanu, for making us dance. I dance like anything because मैं कभी डांस नहीं करता हूँ और मुझे तो बहुत Thank मजा you आया। very much. शांतनु ने मुझे गोविंदा बना दिया। थैंक यू फॉर दैट। एक फॉर्मूला दिया है शांतनु सर ने, JHP, J for being joyful, H for being happy, and P stands for being peaceful. So that is something which we need to explore now for 21 days. We have to do so many things. See, हमको faith रखना है, हमको determination रखना है, हमको practice करना है, और joyful, happiness और peaceful हमारे nature को identify करना है। और 21 days ही नहीं, maybe 21 years तक या उससे भी ज्यादा हमें हमेशा जॉयफुल, हैप्पी और पीसफुल रहना। वो हम कैसे करेंगे वो हम 21 डेज में सीखेंगे। ठीक है, तो अभी हमने शांतनु सर ने जो एक्टिविटी कराई वो बस एक छोटा सा, उन्होंने आपको एक, कहते हैं ना जैसे जब आप कहीं घूमने जाते हो, आपने एक बहुत बड़ा झरना देखा, ठीक है, आप उस झरने के थोड़ा सा नजदीक जाते हो तो दूर से ही अगर आप उस झरने को देखते हो तो छोटी छोटी बूंदें, छोटे छोटे ड्रॉप्स आपके फेस पे गिरते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा वाह करते हो आप, है ना। बट सोचो अगर आप उस झरने के और करीब जाओगे तो कितना मजा आएगा। तो ये जो छोटे से झरने की बूंदें जो शांतनु सर ने अभी हमें दी हैं, तो अभी 21 डेज में तो हमें बहुत कुछ करना है ना। तो पूरा रोड मैप जो है हमारा 21 डेज का, वो हमें हमारा बेटर वर्जन ढूंढने में हेल्प करेगा। माई बेटर वर्जन, हु एम आई, मैं कब उठता हूँ, क्या करता हूँ उठने के बाद, मैं क्या क्या एक्टिविटीज करता हूँ, मैं स्टडीज के अलावा और क्या क्या करता हूँ, मैं क्या प्रोडक्टिव चीजें करता हूँ। ओके, सो दैट विल बी द बेटर वर्जन। मैं जो हूँ आज, मैं 21 दिन के बाद मैं अपने आप को कैसे देखता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे क्या गोल्स थे, मेरे क्या चैलेंजेस थे, मैंने फॉर्म में क्या फील किया था, मैं उनको कैसे अचीव करूंगा। तो देखो फोटो में देखो, तो बच्चा उठ रहा है, उठने के बाद फिर मेडिटेशन कर सकता है, योगा करता है, फिर कुछ एक्टिविटीज करता है, होमवर्क भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, परफेक्टली हर एक चीज को कर रहा है। तो ये 21 डेज में हम लोग सीखेंगे क्या एक्शन प्लान होगा, ये आपको इंपॉर्टेंट है ये नोट करने के लिए। एक्शन प्लान जो है वो ये है कि आपको एक डायरी या एक नोटबुक या एक पेज या एक या नहीं मल्टीपल पेजेस आपको बनाने हैं और उनको एक जर्नल की तरह बनाना है। जर्नल क्या होता है? जर्नल होता है जिसमें हम हर चीज का एंट्री करते हैं, कोई भी चीज। मुझे कुछ लगा, मैंने देखा सनराइज, वाओ क्या सन है, तो मैंने लिख दिया डायरी में, आज मैंने बहुत अच्छा सनराइज देखा एंड आई फेल्ट सो ग्रेट, आई फेल्ट सो पॉजिटिव व्हेन आई सॉ दैट। ओके, and when I see sunset it feels so calm, so peaceful, and my mind is like the calm state, and I'm noting it down. Whatever experience I have, I make diaries, I make journals. So every day for 21 days get a diary or notebook. I'm not saying कि डायरी बोला है तो आप डायरी ढूंढना है भैया, आप पापा मम्मी को बोलना है मुझे डायरी चाहिए, बस पंकज सर ने बोल दिया या शांतनु सर ने बोला कि अब डायरी चाहिए, जरूरी नहीं है। बी क्रिएटिव, create your own diary, make your own planner, okay, plan of action कैसे करोगे, एक अपना कैलेंडर भी बना सकते हो, वॉल पे लगा सकते हो, ओके, जो भी आपको करना है अपनी मर्जी से, छूट। अच्छा, उस डायरी में या उस प्लानर में, उस चार्ट में राइट डाउन योर एक्सपेक्टेशंस, मीन्स दोज गोल्स विच यू हैड ऑलरेडी रिटन, जो फॉर्म में आप लोगों ने लिखा था, दोज वर द एक्सपेक्टेशन। एस्पिरेशंस, क्या करना है आपको आगे, कैसे अपनी लाइफ को लीड करेंगे, क्या क्या चीजें सीखना है अभी, वो सब लिखो वहां पे, ओके, फ्रंट पेज पे। और द बेस्ट थिंग इज इफ यू आर गुड इन स्केचिंग और इन आर्ट, यू कैन ड्रॉ योरसेल्फ अ फनी फेस, ब्यूटीफुल फेस, बिग आईज, लॉन्ग हेयर, ओके, उसको बना के और अपने आप को देखो कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। और just try to see what are the bad habits, what are those habits which you want to just remove from your life, okay, and what are the habits which you want to bring in your life। तो उसका एक अच्छा सा एक फिगर बनाओ, अपना एक खुद का फोटो बनाओ, पोर्ट्रेट बनाओ। उसके बाद कीप नोट्स ऑफ योर डेली प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ योर थॉट प्रोसेस, फीलिंग्स एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेडिटेशन करते हो तो व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स आर कमिंग इन योर हेड ऑन वेरी फर्स्ट डे। फॉर एग्जाम्पल, मैं मेडिटेशन के लिए बैठ गया
और बस मेरे दिमाग में तो आइसक्रीम आ रही है, माय गॉड आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, आँख तो बढ़िया 15 मिनट्स के लिए बैठा हूँ बट दिमाग में तो आइसक्रीम है। नोट इट डाउन, ओके, नोट इट डाउन कि मैं आज मेडिटेशन करने बैठा था, मेरे दिमाग में आइसक्रीम आई, या मैं मेडिटेशन करने बैठा तो मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा जानवर आ गया सडनली और मेरे को डर लग गई। यू नो, डोंट जज योर थॉट्स, द वे थॉट्स आर कमिंग, बी अवेयर, ऑब्जर्व योर थॉट पैटर्न एंड राइट इट डाउन। आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ, आज मैं इतनी देर के लिए काम था मेडिटेशन में, आई हैड अ गुड एक्सपीरियंस, आई हैड अ बैड एक्सपीरियंस, आई वाज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट। जो भी है लिखो, ऑनेस्टली लिखो, ठीक है, ऑल फीलिंग्स और थॉट प्रोसेस सब कुछ लिखो एंड शेयर दोज विद अस फॉर गाइडेंस एंड सपोर्ट फॉर 21 days। अपार्ट फ्रॉम हम लोग जो कुछ करेंगे उसके अलावा यू कैन send us those thoughts and processes. You can tell us. Sir, your voice is not coming. You have to just Sir, mute your yourself. voice is not coming. हाँ. तो अगर आप अपने आप को नहीं करोगे Sir, your voice is not coming. Yes sir, my voice is not coming, so just be muted. मेरी voice आएगा. Shantanu, please mute them. Lot of noise is coming. Okay, so okay, so first point is get a diary, notebook, page, chart, whatever you feel, whatever comfortable. आप normal घर के rough paper से भी बना सकते हो, ठीक है? And I want you to create something. Don't just go and buy it. Okay, अपने हाथों से बनाओ. Write down your expectations, aspirations on the front page. मतलब जो भी आपने goals, challenges लिखे थे, आप क्या क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, हमने देखा था ना अभी goals and challenges आप सबने जो लिखे थे, जो आपने फॉर्म में फिल किया था, वो सब उस पे लिखो आप, ठीक है? वो सब लिखो, कौन से थे वो गोल्स, कौन से थे वो एक्सपेक्टेशंस, एस्पिरेशंस, ये थे। अगर आप ये चाहते हो अपनी लाइफ में करना तो उसको लिखो, बनाओ, उसको फ्रंट पेज पे लिखो। एवरी डे यू सी, एवरी डे यू नोटिस, और अपनी प्रोग्रेस को चेक करो कि मैं अपनी इस जर्नी में कितना आगे बढ़ रहा हूँ, बढ़ रही हूँ। ओके, एंड शेयर इट विद अस। ओके, सो दिस वाज that, and then keep notes of your daily progress, your thought process, feelings, etc. Don't judge your thoughts. अरे मैं ऐसा सोच रहा था, सर को कैसे बताऊंगा, मैं डायरी में कैसे लिखूं कि मैं आइसक्रीम के बारे में सोच रहा था या सोच रही थी। Don't do that. अगर सोच रहे थे तो लिखो, किसी इंसान के बारे में सोच रहे थे तो वो भी लिखो। अगर कोई चीज तुम्हें ट्रबल कर रही है, तुम्हें परेशान कर रही है, तो लिखो उसको and share those with us. You will get guidance and support. Apart from that, ये आपको करना है। दूसरा जो हम करेंगे आप लोगों के साथ रोज मिलके, वो होगा मॉर्निंग सेशन 8 AM to 9 AM, इवनिंग सेशन 5 PM to 6 PM एवरी डे। 21 days प्लान। एक्टिविटीज क्या होंगी? डेली मेडिटेशन, या संडे ऑल्सो। Sir, the online classes were on timing. Yes, sir, you have morning 8 to 9. Sir, 8 PM. That time we will have classes Listen everyone. 8 AM. Listen everyone. Listen everyone. There are certain limitations. We know that you have a lot of things apart from challenge. You have got your regular classes. We know that. But, अच्छा, ये जो भी सिंगिंग कर रहा है उसको नेक्स्ट टाइम हम बुलाएंगे सिंगिंग के लिए, तो आप लोग तैयार रहना, जो अभी पीछे गाना गा रहा था। अच्छा देखो, हम सबको पता है कि आप लोगों के पास बहुत टाइट शेड्यूल रहता है, आप मॉर्निंग सेशंस में क्लासेस भी करते हो, इवनिंग सेशन में भी क्लास करते हो, बट दिस इज द बेस्ट थिंग विच वी हैड come up. Morning session 8 to 9 AM, if we can start with some yoga and meditation, so entire day if you are attending your online classes, you will be full of energy. Okay, you can't just sit in front of your mobile screen every day and not doing any physical activity. शांतनु सर ने आपको ऑनलाइन क्लास में भी एक बहुत अच्छी फिजिकल एक्टिविटी दिखाई, बट आप इतने टाइम से ऑनलाइन क्लास में बैठते हैं बट आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं बहुत ज्यादा, तो इसलिए 8 AM to 9 AM is dedicated for that. If it is possible for you to attend, so please attend because that is very important. 21 days का जो रोड मैप है वो तभी फुलफिल होगा जब हम summer vacation is also going on. There is no connection between this plan and summer vacation.
Okay, if it suits you, you can always join this. Even if your regular studies are happening, you can always join. And people who are not able to join, they will get the recordings of the program. But of course, if you are getting video recordings, you will only see one side of story. You will not be able to participate. फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग में योगा सेशन हो गया और शाम को आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिल रहा है, तो आप शाम को योगा करेंगे? या कोई एक्टिविटी है जहाँ पे आप इन्वॉल्व होके कुछ गेम कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो नया, बट आप वीडियो में देख पाओगे, यू विल नॉट पार्टिसिपेट. सो दिस इज द प्लानर between 8 AM to 9 AM. If it is very difficult, क्योंकि छुट्टी है, आप 8 बजे भी नहीं उठ सकते हो, या अगर आप 7 बजे उठते हो तो that can shift to 7 AM to 8 AM. It is all up to you. Excuse me, sir. 7 AM to 8 AM or 8 AM to 9 AM. Don't interrupt in between. Let me just finish it. उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर देख लेंगे, ठीक है? Activities which are planned: daily meditation, yoga sessions, mind power games and brain exercises, storytelling and interactive sessions, musical sessions. Okay, we will invite people who can present some musical concert for you. So maybe you can enjoy that, being at your own respective places. कुछ लोग आएंगे जो म्यूजिक और माइंड के कनेक्शन को समझाएंगे, हमारी लाइफ में म्यूजिक का कितना इंपॉर्टेंस है ये बताएंगे आपको, और क्यों हमें म्यूजिक को अपनी लाइफ में लेके आना चाहिए ये समझाएंगे. ग्रुप डिस्कशंस होंगे, सिंडिकेट एक्सरसाइजेस होंगी और क्रिएटिव एक्टिविटीज होंगी. So this is the overall plan of this 21 days challenge. Okay, and always remember that we are the creators of our own destiny. Please mute yourself. Shantanu, can you please do it every time? मैं उसको बार-बार म्यूट कर रहा हूँ, वो अनम्यूट हो रहा है, मैं उसको रिमूव कर रहा हूँ. उसको आप रिमूव करिए ग्रुप से, उसको रिमूव करिए अभी. जो रूल्स फॉलो नहीं करेगा, we will just remove that person. Okay, so we are just in the at the end of this session, and with this line that we are the creators of our own destiny. हिंदी में हम बोलते हैं कि हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं. मतलब the kind of fortune I want for myself, I am the only person who is responsible for it. मैं जैसा अपना फ्यूचर चाहता हूँ वो मैं खुद बना सकता हूँ. Okay, so I am the creator. Nobody else can do that. There are people who can help you. There are people who can guide you, but you are the one who will walk on the path of either self-development or joyful transformation. Okay, so we expect that you take the way you have taken initiative while filling up the form. Similarly, you will take initiative and continue with this 21 days challenge, and you will come, attend the sessions and gain something out of it, something productive, which you can bring in your everyday's life and change your life for good reasons. Change your life for holistic development. Okay, so activities, just imagine meditation, yoga, then music, then games, then exercises. I don't think you will get such opportunity anywhere in one platform. So IQF Club of Service is providing you this opportunity, and you don't have to pay anything for that, except your faith, your determination, and your practice. That is these are the only things which are required if you want to reach out to joyfulness, happiness, and peacefulness. Okay, so having said that, thank you so much. It was great to have you, and we are looking forward to seeing you tomorrow morning and evening, regular attendees. Sir, evening also exercise? Yeah, both morning and Okay, evening. sir. Morning time We 8 don't AM to remind 9 me, AM. sir. I have to ask something. ओके, एक सेकंड रुक जाओ. मॉर्निंग का जो टाइम है वो 8 बजे से 9 बजे तक है. इवनिंग का जो टाइम है वो 5 बजे से 6 बजे तक. ठीक है, अगर कोई बच्चा कोई भी एक सेशन मिस कर रहा है, मार्क माय वर्ड्स, इफ यू आर मिसिंग एनी सिंगल सेशन,
आप खुद से उस सेशन को, जो भी उसमें सेशन में हुआ है, आप उसको वीडियो से देखो और उससे सीखो, अगर आप कुछ मिस कर जाते हो. अदरवाइज ट्राई टू बी रेगुलर सो दैट ये 21 का जो ब्रेक है, ये चेन है, ये ब्रेक ना हो. And after 21 days, maybe that thing which you are practicing will become part of your everyday life. फिर ये जैसे हम every morning I wake up and मैं अपने brush करता हूँ. It's a habit. Every day I do that. Okay. Similarly, the whole thing will become the part of your life. That's it. Any other question? Yes, of course. People who will participate in a continuous manner, because we'll have attendance and everything, they will be given a certificate. Okay, a certificate from IQF that they had participated in 21 days power challenge, and people who will complete it, they will only get it. Plus there are more goodies as well. So just try to be regular, and जो भी आपको बोला गया है, maintain a diary, maintain your planner. जैसे आप टाइम टेबल बनाते हो, वैसे आप 21 days का एक planner बनाओ. All those areas where you want to work, you just note it down and work on that. And we are there to help you out. We are there at every step. We'll help you so that you can reach to that goal. Thank you so much. Excuse me, sir. I want to ask you something. Please ask. Sir, can you add me in 20 Yeah. days power challenge group? We'll do that. Don't worry. You'll all be added. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. See you. Bye, sir. Forget to come tomorrow. Thank you, sir. Don't forget to come tomorrow morning. Bye, sir. Wait for you tomorrow. Bye. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you. See you tomorrow. Bye, sir. So tomorrow morning, have your dinner and sleep. So what we have to do in one day? Sir, thank you, sir. See you tomorrow. कल शांति से कराएंगे. So just be prepared for it. Bye. Just do like this. Okay. Bye, If sir. you have Thank you, any sir. See you question, tomorrow. if you have any question, you can send us personal messages. Okay. Group में Sir, in one day what we have to do? Add me in the group. we shall add you in the group.